I swear to God, I do not wake up each morning with an intent to make a new video. But जब तुम लोग मेरे Instagram में हनी सिंह भर दोगे ना, then I have to talk about it. Plus, Honey Singh is kind of the most popular video on my channel, so I have to essentially talk about it. And when Honey Singh comes out with a new song called Loka, जिसका melody मेरे दिमाग में stuck हो गया है, I wonder why. I'm going to talk about it in the video, by the way. And when I realized that Honey Singh's new music video is nothing more but an ad for a brand of speakers, I have to absolutely talk about it. So that is exactly what we're going to do in this new video. We're going to talk about Honey Singh's new song Loka. Part 1 will focus on the ad that this song is, because the song in itself is nothing special. And part 2 will be why, even though the song is crap, उसमें वो दारू लड़कियाँ और apparently speakers हैं, why does it get stuck in your head? What is this phenomena जो तुम्हारे दिमाग में cringy songs like ढिंचाक पूजा गाने वो stuck हो जाते हैं? So timestamps on your screen right now, and let's just begin. Today I'm not going to sit down because I've set up my mic with the intent कि आज मैं आराम से तुमसे प्यार से बात करूँगा. But let's see. The first part of this song, about this new song Honey Singh का Loka, you will instantly notice that there is nothing new happening in the song. There is no new melody. Honey Singh है, लड़कियाँ हैं, दारू की बातें हैं, पार्टी की बातें हैं, typical yo-yo Honey Singh staples. But the problem is that Honey Singh in the last 5 years I think has come out with 6 songs. 5 साल में 6 गाने में तो ऐसा लगता है कि आमिर खान ने ज़्यादा मूवीज कर ली होंगी for 1 in 10. But the point here is not that. Point here is that this new music video, and you will remember that in the previous music video Makhna Honey Singh में there was a very common factor. The common factor was this brand called Ubon. Ubon or Ubon, depending upon how you pronounce it. So this brand is an Indian brand. It is apparently a 20-year-old brand, going by the profile of one of its co-founder on LinkedIn. I think this is a 20-year-old brand, and इस brand की सबसे memorable चीज़ ये है कि ये हनी सिंह की म्यूजिक वीडियो में फीचर्ड होते हैं. सो दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ बीइंग अ प्रोडक्ट प्लेसमेंट. तुम डिस्क्रिप्शन में देखोगे कहीं तुम्हें नहीं मिलेगा इस ब्रांड का नाम. इनफैक्ट तुम अगर गूगल पे जाके Ubon के बारे में सर्च भी करोगे ना, यू विल बेयरली गेट एनी रिव्यूज. यू विल ओनली गेट पेड न्यूज आर्टिकल्स. यू विल ओनली गेट इनकी वेबसाइट. इनकी वेबसाइट पर जब मैं गया, then I realized that Ubon is nothing more than kind of a rip-off of JBL and Apple. I mean the two most prominent thing on the website, home page पे स्पीकर्स हैं जो JBL के स्पीकर्स का रिप ऑफ लगते हैं, एंड इनकी स्मार्ट वॉच है जो सस्ती एप्पल वॉच लगती हैं. नथिंग अगेंस्ट द ब्रांड. आई हैव नेवर यूज द ब्रांड. मुझे नहीं पता कि इनकी क्वालिटी वगैरह कैसी होती है. अपेरेंटली इनका ब्रांड एम्बेसडर एट सम पॉइंट वाज टाइगर श्रॉफ, सो कुछ तो इनकी क्रेडिबिलिटी होगी. एंड द करंट ब्रांड एम्बेसडर इज दिस गर्ल कॉल्ड जन्नत जुबैर. सो nothing against the brand, but the Honey Singh new song, from a point of view of a viewer is watching the first time, तुम देखोगे पूरा गाना तुम्हारे दिमाग में बस Ubon स्टिक आउट करेगा, क्योंकि गाने में एज सच कुछ भी मेमोरेबल नहीं है. नाउ आई एम नॉट सेइंग प्रोडक्ट प्लेसमेंट इज बैड. प्रोडक्ट प्लेसमेंट हर कोई करता है. तुम्हारे कैरी मिनाती का जिलेट का जो प्रमोशन वो कर रहा था वो भी प्रोडक्ट प्लेसमेंट ही था, बिकॉज ओपनली नोबडी सेड कि जिलेट ने उसको पैसे दिए हैं. अगर तुम देखोगे वेरी पॉपुलर इन मूवीज ऑल्सो यू सी कोक या एप्पल की प्रोडक्ट्स, वो सब भी प्रोडक्ट प्लेसमेंट होते हैं. प्रोडक्ट प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं है. एंड दिस इज नॉट गोइंग एनीथिंग अगेंस्ट हनी सिंह और टी सीरीज जो जिन्होंने म्यूजिक बनाया है. दिस इज जस्ट अ सिंपल केस ऑफ प्रोडक्ट प्लेसमेंट. नाउ द ओनली प्रॉब्लम आई हैव विद Ubon एज अ ब्रांड इसकी उनकी कोई क्रेडिबिलिटी इस म्यूजिक वीडियो के अलावा नहीं है. बट दैट इज प्रिसाइजली देयर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. हनी सिंह के पिछले 2 गाने, इनफैक्ट मखना में, दे गॉट 257 मिलियन व्यूज. आई थिंक द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दिस सॉन्ग, इफ इट इज एनीवेयर बिटवीन 10 to 15 to 20 crores, and if Ubon sponsored say 10%, 20% of it for their product placement, उनकी marketing strategy हो जाती है. They don't spend money on Instagram, they don't spend money on ads, they only spend money on product placement. It is a very डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी, अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. एंड इसका सीधा जो लेना देना है ना, वो है इनकी ऑडियंस से. हनी सिंह की म्यूजिक वीडियो पे तुम अभी भी जाके देखो, 2 मिलियन के आसपास व्यू है एट द टाइम ऑफ मी मेकिंग दिस वीडियो. एंड सारे टॉप कमेंट्स है हनी जनता हिट लाइक, हनी जनता हिट लाइक, हनी सिंह का कमबैक से खुश जो लोग हैं वो हिट लाइक. दोज आर द काइंड ऑफ ऑडियंस जिनको चाहिए अच्छी चीज़ें, but probably they don't have the knowledge or the funds to get those good things. For those people, Ubon has found a perfect product market fix. उनके स्पीकर्स की क्वालिटी मुझे नहीं पता कैसी होती है. मैंने यूट्यूब पे भी सर्च करने की कोशिश करी if I could find any reviews, because नेट पे मेरे को रिव्यूज़ नहीं मिले. यूट्यूब पे मेरे को टेक्निकल सागर का एक रिव्यू मिला जिसमें बस मैं क्या ही बोलूँ, बट आई कुड नॉट फाइंड दी एनी क्रेडिबल सोर्स जो मेरे को बताता है कि उनकी क्वालिटी अच्छी होती है. बट अपेरेंटली फॉर Ubon इट डजंट मैटर, बिकॉज वो प्रोडक्ट प्लेसमेंट जिस ब्रांड पे कर रहे हैं, हनी सिंह के साथ कर रहे हैं, उसकी ऑडियंस के साथ कर रहे हैं,
I think it's a brilliant marketing strategy for Ubon, and apparently it must have paid off last time उन्होंने मखना में promotion किया था, and that is why they're doing it again. तो हनी सिंह का song जैसा भी हो, for me the only thing that stuck out was कि Ubon के speaker literally 40-50 बार feature हुए हैं 4 मिनट के गाने में, and that is a brilliant marketing strategy. तो आज तुम्हें अगर कुछ और नहीं सीखा हनी सिंह का गाना सुनने के बाद तुमने कुछ और नहीं भी सीखा है, तो ये the one thing that you should take away from this song, अगर तुमने आज कुछ नहीं सीखा है, तुम्हें गाना भी पसंद नहीं आया है, इसकी हनी सिंह की product placement marketing strategy with Ubon apparently is very profitable for them. Okay, so part 2 of this video is this very common phenomena about why bad songs or even songs get stuck in our head. इसके 2 reasons होते हैं. तुमने देखा होगा कि हनी सिंह का ये गाना तुम्हारी जब सुनोगे ना तुम ये सॉन्ग हनी सिंह का, इट विल गेट स्टक इन योर हेड. ये लोका 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 वाला जब मेलोडी और जो इसका हुक फ्रेज होता है ना, इट इज स्टिल स्टक इन माई हेड एंड आई कैन नॉट फॉर द लव ऑफ गॉड गेट इट आउट ऑफ माई हेड. तो मैंने सोचा कि ये क्यों होता है, वाई इज दिस हैपनिंग, कि ऐसे गंदे गाने, फॉर एग्जाम्पल धिनचाक पूजा के गाने विच आर क्रिंजी स्टिल गेट स्टक इन योर हेड. और बहुत सारे गाने हैं जो तुम अगर 1000 बार सुनोगे तो तुम्हें गाने में दे गेट स्टक इन योर हेड. दीज आर कॉल्ड earworms. These are called earworms, and this is based on a phenomena called involuntary music imagery, INMI. So this information is coming from a 2012 based study from Finland called the psychology of music. And from that study I could deduce कि ये जो सारे earworm song होते हैं ना, जो INMI के अंदर fall करते हैं, इनके अंदर 3 बहुत important characteristics होते हैं. एक, इनमें repetitive melody होती है. Case in point, लोका 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 लोका, सेल्फी 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 सेल्फी, दारू 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 दारू, ये मेलोडी होती है. पॉइंट नंबर 2 इज दैट इनकी मेलोडी जो होती है, जो रेपिटेटिव होते हैं, ये बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड होती है. हनी सिंह के इस गाने में भी कोई कॉम्प्लेक्स लिरिक्स नहीं है. हनी सिंह के गाने और एमिनेम के गाने या फिर हिंदी रैप में भी बहुत कॉम्प्लेक्स लिरिक्स होता है. इस गाने में कोई कॉम्प्लेक्स लिरिक्स नहीं है. मुझे दारू करनी है, मुझे कोक पीनी है, मुझे पानी पीना है, मुझे पता नहीं क्या क्या करना है. दैट इज द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग. इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. तुम्हें समझने में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा. बस तुम्हारे दिमाग में जो हुक सॉन्ग है, विच इज अबाउट 30% ऑफ दिस एंटायर सॉन्ग, दैट इज लोका 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 लोका, कोका 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 कोका. इट्स पिच you will notice is very different from the rest of the song, and that is another common trait that is shared between all of these earworm songs, that the pitch is going to be such that it is going to get stuck in your head. And this pitch जो थोड़ी different होती है ना, that adds to the unique part which gets stuck in your head, because it is simple to understand. Your brain replays it. Your brain has not got to spend a lot of time to process it, and because brain को उससे ज़्यादा process नहीं करना पड़ता है, वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में ऐसे गोल 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 घूमती रह जाती है. And because this forms a part of the involuntary music imagery, which means कि तुम अपने आप से चाहते नहीं हो कि तुम्हारे दिमाग में गाना स्टक हो जाए. ये involuntary होता है, तुम्हारे दिमाग के wishes के against होता है, which is why it becomes incredibly difficult to get it out of your head. ये बहुत 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 common phenomena है because of these songs, and that is something that these songs, these makers have exploited to the fullest, कि तुम्हारे दिमाग में स्टक हो जाएगा and तुम उसको निकाल नहीं पाओगे, and then you will come back and market it. तुम सोशल मीडिया पे जाके बोलोगे कि मेरे दिमाग में गाना स्टक हो गया है, और लोग सुनेंगे. It's like an epidemic that spreads from person to person, much like coronavirus. Okay, that was a very lame and deep joke. And adding to this trait is the fact कि ये जो जितने भी गाने तुम्हारे दिमाग में stuck होते हैं ना, they were more or less they are bad songs which are cringy. And from what I could figure out, इनको दिमाग से निकालने का पर्पसफुली कोई तरीका नहीं है. आई थिंक दैट्स अ वेरी सैड थिंग दैट आई हैव टू टेल यू गाइस कि इसको निकालने का कोई तरीका नहीं है. बट वन वे दैट आई हैव काइंड ऑफ फाउंड आउट ऑनलाइन ऑन रिसर्चिंग एंड डूइंग माई रीडिंग इज़ कि अगर तुम उस गाने को शुरू से एंड तक दोबारा सुन लेते हो, बेसिकली व्हेन योर ब्रेन गेट्स दैट क्लोजर मिल जाता है ना, कि एक लूप घूम रहा था और तुम्हें दिमाग में चला जाए कि वो लूप कैसे एंड होता है, दैट इज़ प्रोबेबली द ओनली वे यू माइट गेट दीज सॉन्ग्स आउट ऑफ योर हेड. एंड अगर ये काम नहीं करता तो तुम यू आर स्टक विद लोका 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 इन योर हेड फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू so much for watching it till the end. Honey Singh's new song came out and I had to talk about it because I wanted to talk about it. So if you're new to the channel, make sure you subscribe. I come up with a lot of new videos about your TV shows, movies, video essays every week. So make sure you subscribe, like, share, वो जो सब चीज़ें हैं. And that's it for this one. Thank you so much for watching it till the end. I will see you in the next one. Goodbye.